Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Softtech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. IO interface and ports. In this topic, we will discuss about input-output interface, input-output bus and interface modules, input-output module versus memory, isolated or port mapped versus memory mapped, port mapped versus memory mapped, and example of input-output interface. Now, first of all, input-output interface. What is the meaning of input-output interface? Any input device or output device, any input device or output device cannot connect directly with the processor because we have very much limitations with that. Processor is a very high speed device, whereas input or output devices are very much slow in the speed. IO devices are very slow in the speed and processor is very high in the speed. So we need an interface and mediator which will communicate or mediate in between of IO devices and प्रोसेसर और आईओ डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए एक इंटरफेस लगाया जाता है, एक डिवाइस लगाया जाता है, बिकॉज आईओ डिवाइसेस की स्पीड बहुत कम होती है और प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है. ऑल्सो वी हैव lot of input output devices with us, but we cannot have so much ports with the processor to connect all these devices together. So in that case we need an interface in between. Interface is nothing but the mediator which connects the processor with the input output devices. Why we need interface? Because direct communication is not possible. Why it is not possible? Because both have different manner of operation. प्रोसेसर बहुत हाई स्पीड पे काम कर रहा है, आईओ डिवाइसेस बहुत स्लो स्पीड पे काम कर रही हैं. देयर इज अ डिफरेंस इन द ट्रांसफर रेट, डिफरेंस इन द वर्ड फॉर्मेट. वर्ड फॉर्मेट मींस इसका जो वर्ड साइज है वो ज्यादा है. फॉर एग्जांपल ये लाइक 64 बिट के डेटा को एक साथ प्रोसेस कर लेगा, बट जो आईओ डिवाइस है वो सिर्फ 32 बिट का डेटा ही सेंड कर सकती है या 8 बिट का डेटा ही सेंड कर सकती है. So in that case both have different word size. दोनों का word size अलग है, data size अलग है, तो दोनों devices को directly communicate नहीं किया जा सकता. Now difference in operating modes of peripherals. Difference in operating modes of peripherals. दोनों peripherals के अलग अलग ऑपरेट करने का अलग अलग मोड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक जगह आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया, दूसरी जगह आपने जो है कोई लाइक माउस या टच पैड कनेक्ट किया हुआ है. In case of mouse or touchpad, there is no input like text फॉर्म में कोई इनपुट नहीं आएगा. कीबोर्ड में आपके पास ग्राफिकल फॉर्म में कोई इनपुट नहीं आएगा, आपके पास टेक्स्ट ही आएगा A B C X Y Z 1 2 3. ओके, सो अलग अलग पेरिफेरल्स का अलग अलग ऑपरेटिंग मोड है. दैट्स व्हाई अब हमें सब प्रोसेसर सबके साथ एक साथ काम नहीं कर सकता. सो बीच में एक मीडिएटर लगेगा, एक इंटरफेस लगेगा जो सारे पेरिफेरल्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराएगा. ओके, now see, processor has three buses: data bus, address bus and control bus. Processor has three buses: data bus, address bus and control bus. Okay, all these three buses are connected with each and every device. All these three buses are connected with every device using the interface. Now see, data bus, address bus, control bus, all together it is known as IO bus. Each bus is connected with the interface. Now interface is connected with the device. In this case, first is connected with keyboard and display.
सेकेंड प्रिंटर के साथ कनेक्ट है, थर्ड मैग्नेटिक डिस्क के साथ, एंड फोर्थ इट इज कनेक्टेड विद द मैग्नेटिक टेप. एंड इन द सेम मैनर यू कैन कनेक्ट so many devices together. Now what will happen when keyboard is about to send data? तो ये अपने इंटरफेस से कम्युनिकेट करेगा एंड दैट इंटरफेस विल कम्युनिकेट विद द प्रोसेसर. इसको डेटा भेजना है, एड्रेस भेजना है, कंट्रोल सिग्नल है क्या नहीं है, वो सारा काम इंटरफेस मैनेज करेगा. कीबोर्ड तो एक डिवाइस है, उसका काम सिर्फ डेटा देने का है. बाकी जितनी भी इंटरमीडिएट ऑपरेशंस है वो कौन देखेगा? इंटरफेस ओनली. Each and every input output device must have the interface. Each and every input output device have the interface. Clear? Now, what are the IO commands? Input output operation करने के लिए कुछ commands दी जाती है. Commands are the instructions of the operations. जो भी execute करना है instruction या operation जो आपने perform करना है उसके लिए जो instruction दी जा रही है that is known as a command. There are four types of IO commands. There are four types of IO commands. First is control command. कोई control signal भेजा जाए that is known as control command. Status command. To check the status of the device, whether it is connected or disconnected, whether it is operating, it is listening or not listening, and so on. So such signals are known as status. Next is output data command and input data command. Data is writing. If processor writes something, then it is called output data command. If processor is taking some data or reading some data, then it is input data command. Okay? Processor अगर data receive कर रहा है तो input है, processor write कर रहा है तो output है. So किसी भी input output device को generally इनको एक साथ ही बोल देते हैं हम IO device, input output device. So input output device जब एक साथ बोला जाता है तो उस केस में रीड राइट दोनों ही काम एक साथ हो जाते हैं. ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज आईओ वर्सेस मेमोरी बस. इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी बोथ आर कनेक्टेड यूजिंग बस. बोथ आर कनेक्टेड यूजिंग बस. बस क्या करती है? बेसिकली बस इज नथिंग बट अ कनेक्टिंग वायर. बस इज नथिंग बट द कनेक्टिंग वायर. ये कनेक्टिंग वायर क्या करती है? डेटा ट्रांसफर कराना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक. डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इफ दिस इज अ लोकेशन, दिस इज अनदर लोकेशन. ओके, इन दोनों लोकेशंस में कोई डेटा ट्रांसफर होना है. बोथ द लोकेशंस हैव एड्रेस, बोथ द लोकेशंस हैव सम डेटा. ये ऑपरेशन कौन परफॉर्म करेगा? दिस ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड बाय बस ओनली. लाइक इनपुट आउटपुट बस, मेरी बस ऑल्सो कंटेन्स डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल लाइन. जैसे इनपुट आउटपुट बसेस में है ऐसे ही मेमोरी बस में भी है. उसके पास भी वही तीन सिग्नल होते हैं. कौन से? डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस. देयर आर थ्री ways in which they can communicate. First is both the system have separate buses. Both the system has separate buses. दोनों के पास अपनी अलग अलग बसेस हों, डेटा अलग, एड्रेस अलग. और यूज वन कॉमन बस. एक कॉमन बस यूज करें फॉर डेटा एंड एड्रेस, बट कंट्रोल सिग्नल के लिए अलग से सेपरेट बस हो. थर्ड इज कॉमन बस विथ कॉमन कंट्रोल लाइन. मींस एक ही बस है, उसी से डेटा, उसी से एड्रेस, उसी से कंट्रोल सिग्नल. तीनों चीजें एक साथ एक ही बस से ट्रेवल हों. ओके, दीज आर द थ्री वेज इन विच अ memory bus can communicate, memory system can communicate. Now difference between isolated or port mapped versus memory mapped. Port mapped, isolated, अगर कोई डिवाइस आइसोलेटेड है, अकेली है, और एक डिवाइस मेमोरी मैप्ड है. मेमोरी मैप्ड मींस आईओ डिवाइस को मेमोरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है. ओके, और यहाँ पर आइसोलेटेड मींस एक अलग ही कनेक्टेड है डिवाइस, अपने अलग इंडिविजुअल. अगर इंडिविजुअल है तो उसके पास सेपरेट रीड राइट लाइंस होंगी, और अगर वो मेमोरी मैप्ड है तो सिंगल सेट ऑफ रीड राइट लाइंस होंगी. मींस डेटा रीड करने का काम या तो मेमोरी से होगा या इनपुट डिवाइस से होगा. राइट करने का काम या तो मेमोरी में होगा या आउटपुट में होगा. सो बेसिकली दोनों के केस में क्या होगा? कॉमन वायर
कॉमन बस चल जाएगी। सो मेमोरी मैप्ड आईओ में कॉमन लाइंस होंगी और आइसोलेटेड में सेपरेट लाइंस होंगी। सेपरेट मेमोरी एंड सेपरेट आईओ एड्रेसेस आर देयर। अगर अलग अलग डिवाइसेस है, मेमोरी अलग है, मेमोरी की बस अलग है, इनपुट आउटपुट डिवाइस अलग है, उनकी बसेस अलग है, तो उन सबके एड्रेस स्पेस भी अलग होंगे, सबके एड्रेसेस अलग होंगे और सबके एड्रेस के जाने के लिए एड्रेस बस भी अलग होगी। बट इन केस ऑफ मेमोरी मैप्ड, अगर आईओ डिवाइसेस मेमोरी के साथ मैप की हुई है, मेमोरी के साथ मैप करने का मतलब ये है कुछ एड्रेस स्पेस 0 to 7 मेमोरी के लिए छोड़ दिया एंड देन लेट 8 to 15 आईओ के लिए छोड़ दिया, तो ये मेमोरी मैप्ड हो गई है। मेमोरी मैप का मतलब क्या हो गया कि एक कॉमन एड्रेस स्पेस हो गया है जिसमें आपने रिजर्व कर दिया कि दिस स्पेस इज फॉर मेमोरी, दिस स्पेस इज फॉर रजिस्टर, दिस इज फॉर इनपुट, दिस इज फॉर आउटपुट। ओके, नाउ डिस्टिंक्ट इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, अलग अलग डिवाइसेस हैं तो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मेमोरी मैप्ड में कोई स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस अलग से मेंशन नहीं है, कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं, उनसे काम होगा। Moreover, the memory mapped IO devices are more flexible in handling IO operations. Why so? Because अगर एक डिवाइस फेल होती है तो आप दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर एक एड्रेस खत्म हो गया, एक एड्रेस नहीं चल रहा, तो आप उस एड्रेस को स्किप करके दूसरे एड्रेस से डेटा ले सकते हो। बट इन दिस केस ईच एंड एवरी डिवाइस और ईच एंड एवरी मेमोरी यूनिट इज आइसोलेटेडली कनेक्ट। तो अगर एक फेल होती है तो सिस्टम को पता ही नहीं कि दूसरी कोई कहीं कनेक्टेड है भी या नहीं। ओके, now next is example of IO interface. In case of input output interface, what is happening here? This system, this right side portion is of connected with IO device. ये सारा portion IO devices के साथ connect होगा। Okay, whether वो input हो, whether वो output हो, पोर्ट ए से कनेक्ट किया, पोर्ट बी से कनेक्ट किया, कंट्रोल रजिस्टर कनेक्ट होगा, स्टेटस रजिस्टर कनेक्ट होगा। स्टेटस रजिस्टर में स्टेटस आएगा, डिवाइस इज एक्टिव और इनएक्टिव, कंट्रोल डेटा कब रिसीव करना है, कब नहीं रिसीव करना है, डेटा कब राइट करना है। ओके, वेदर पोर्ट ए इज हैविंग इनपुट और आउटपुट, सिमिलरली वेदर पोर्ट बी इज हैविंग इनपुट और आउटपुट, दैट डजंट मैटर एट ऑल। सो कोई भी डिवाइस कहीं पर भी कनेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके सिस्टम में 2 यूएसबी पोर्ट हैं। ओके, जरूरी नहीं कि ये वाला यूएसबी इस पर कीबोर्ड लगेगा और ये वाला यूएसबी इस पर माउस लगेगा, किसी को भी किसी पर भी लगा सकते हैं। ओके, नाउ दिस लेफ्ट साइड पोर्शन इज कनेक्टेड विद द सीपीयू। ये वाला जो पोर्शन है सीपीयू से कनेक्ट होगा। इसमें क्या है आपके पास, यहाँ टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट चिप सेलेक्ट सिग्नल जनरेट करेगी। चिप सेलेक्ट इज यूज फॉर सेलेक्टिंग द डिवाइस। बस बफर इज द बस कंट्रोलर बोल सकते हैं इसको। ओके, इसके बाद बाई डायरेक्शनल डेटा बस है, जो भी डेटा रीड करोगे वो इस डेटा बस के थ्रू ट्रेवल करेगा। रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, रीसेट, रजिस्टर सेलेक्ट, ये सारे सिग्नल जो है प्रोसेसर से जनरेट होते हैं। सो इट इज एन आईओ इंटरफेस यूनिट, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रोसेसर के साथ कैसे लगाया जाता है। इससे पहले वाले डायग्राम में तो हमने जस्ट ये बताया था कि एक इंटरफेस होता है। ओके, अब एक इंटरफेस में क्या क्या चीजें होती हैं वो ये है, ईच एंड एवरी इंटरफेस मस्ट हैविंग दीज थिंग्स। ओके, so this was your IO interface and ports. Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.